Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9.12. We are related with the chapter cost of capital, and where we have already discussed what is capital, what different types of capitals are, and we have discussed their sources, we have discussed their cost. थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ हमने सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस किया था, दैट वाज द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय ओनर्स, प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स और ऑर्डिनरी पब्लिक, investors, shareholders. Whenever these stakeholders will deposit or will invest any amount into the business, that is called capital. Then we have seen, if capital is provided by owner of the business but through loan, if loan has been taken and that amount of loan has been invested in business, that is called debt financing. And if amount is arranged by self and no loan has been taken either by proprietor, partners or shareholders, that is called equity financing. In equity financing we have seen common stock or common capital or common shareholders. What does that mean? If you are asking money from the common people and there is a simple principle with which you are dealing, is that investment based upon profit and loss sharing. If organization will earn profit, that profit will be distributed among shareholders. If company or organization is facing loss, loss will also be shared by shareholders. आम सा कैपिटल जो आप आम पब्लिक से लेते हैं, एक आम सा रूल उस पर अप्लाई होता है। जब पैसे ले लिए, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, लॉस होगा तो आपको उसको बियर करना पड़ेगा जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है। सेकेंड, यू हैव सीन प्रेफर्ड stock, where the method is same, criteria is same. Preferred stockholders or shareholders will invest amount into the business. They are not providing you the loan, but conditions and terms are decided little different. In common stock you will have to share profit and losses in the same manner. In preferred stock it may be possible you are making preferred stockholders in you are making partners them, you are making preferred stockholders as partners. That means they will share profit, but in sense of losses it may or may not be shared by the preferred stockholders. सिर्फ कॉमन और प्रेफर्ड में ये डिफरेंस हो सकता है। ये सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी फ़र्क हो सकता है। कॉमन में प्रॉफिट लॉस शेयर होता है, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक में बाज़ का प्रॉफिट तो शेयर होता है लेकिन लॉसेज वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। देन वी हैव सीन, इफ़ योर profit organization is earning, instead of distributing that profit to common shareholders or preferred shareholders, they haven't distributed it. That profit is still in hand. आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ, मगर उस प्रॉफिट को आपने ना तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिया ना प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दिया, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ने रिटेन कर लिया, अपने पास ही रख लिया। सच प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, दैट profit or income is called retained earning. So these are three ways with which you can finance your capital. आपका एक क्वेश्चन होगा, retained earning means the amount which is not distributed among shareholders. ये कैपिटल कैसे बन गया? देखिए, एक अमाउंट है जो which was supposed to be distributed among shareholders. It was right of shareholders, but you haven't distributed. So what is happening? That retained earning is still in the business. तो आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे. That amount would be used to grow the business, to earn more profit, to increase the inflows in the business. इसलिए it's a form of capital financing. आपको अब अगर ये एक पोर्टफोलियो सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपने डेट भी लिया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, आपने कॉमन पब्लिक से यू हैव टेकन इन्वेस्टमेंट, देन यू हैव टेकन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, देन देयर इज़ सम रिटेन्ड अर्निंग। इन सब की कॉस्ट है। जैसे आप डेट पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और कॉमन स्टॉक पर प्रेफर्ड शेयर होल्डर और रिटेन अर्निंग को आप प्रॉफिट्स की सूरत में, डिविडेंड्स की सूरत में पेमेंट दे रहे हैं। इट मीन्स इन अ सेंस इन सब की एक कॉस्ट है। मगर जो हमारा आज का टॉपिक है वो इट्स लिटिल डिफरेंट।
आप अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ एक मेन हेडिंग लिखी हुई है, द फर्स्ट वर्ड विच विल बी अट्रैक्टेड बाय यू दैट इज़ वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, वेटेड एवरेज। वो कहाँ पर, इफ़ somebody was having stats in first year or even in metric classes, 9 10 chapter was same where you were supposed to calculate weighted average cost। और आपको सिंपल अगर डिस्कशन करूँ, लेट्स से आपके पास 3 अमाउंट्स हैं, 4 and then you have 8 and then you have 10, these were 4 amounts and you want to calculate its average। तो एवरेज के लिए आप क्या करते थे, अगर सम आप लेते थे सारी अमाउंट्स जिनकी एवरेज निकालनी, वी वर हैविंग 3 अमाउंट्स, सो 4 + 8 + 10 sum you have taken and you will be dividing it with the number of items. How many number of items? We do have 3, so here you will get the average of these 3 numbers। यही काम आज भी हमने करना है। हमारे पास there are different types of capital present and their cost is present and you are needed to calculate weighted average cost। लेकिन किसकी कैलकुलेट करने लगे हैं? ऑफ कैपिटल्स। अच्छा, अब कैपिटल मैंने आपको ये भी बताया है कि देर आर 2 टाइप्स, वी हैव डेट फाइनेंसिंग एंड वी हैव इक्विटी फाइनेंसिंग। इट मीन्स मैक्सिमम देर आर 4 काइंड्स ऑफ कैपिटल विच कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर यू कैन मेंशन, और वो मैंने क्या बताया, यू मे हैव डेट, यू मे हैव कॉमन स्टॉक, यू मे हैव प्रेफर्ड stock, you may have retained earning। और आप मुझे ये बताइए कि what average we are going to calculate, we are calculating weighted average cost of capital। तो इसका मतलब कॉस्ट की एवरेज निकालनी है। पहले इस सेंस को आप क्लियर कर लीजिए प्लीज़। आप जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी, किसकी? कॉस्ट की। तो दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, दैट शुड बी कॉस्ट। व्हाट डज दैट मीन? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो आपके पास जो दूसरी चीज़ होनी चाहिए, दैट शुड बी कॉस्ट। अच्छा, अब इसके बाद ये ज़रा गलत जगह पे लिखा हुआ है, इसको मैं इधर लिख लूँ ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। सो वी हैव कैपिटल स्ट्रक्चर, देन वी शुड हैव इट्स कॉस्ट। अब ऑब्वियसली ये पता भी होना चाहिए ना कि हाउ मच डेट, हाउ मच कॉमन स्टॉक, हाउ मच प्रेफर्ड स्टॉक इज़ इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो उसमें ये अगर पूरे बिजनेस में बस 4 चीज़ें हैं तो इसका मतलब है इट इज़ 100% इन्वेस्टमेंट। किसी बिजनेस में सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं तो वो 100% इन्वेस्टमेंट होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ परसेंटेज डेट की होगी, कुछ की कॉमन होगी, कुछ कॉमन की होगी, कुछ प्रेफर्ड की होगी, कुछ रिटेन अर्निंग की होगी। ओके, तो दिस we can consider it as percentage of capital structure। यहाँ आप नोट करेंगे कि कौन सा कैपिटल कितने परसेंट है टोटल कैपिटल का। दिस इज़ योर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेट्स से इफ़ ऑल कैपिटल्स all sort of capitals are having equal percentage, so what you can have 25% is debt, 25% is common stock, 25% is preferred stock, 25% is retained earning, and when you will collectively calculate it would be equal to 100%। और यहाँ पर भी अब जो भी कैपिटल होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि when you will calculate it, it would be equal to 1 और इट वुड बी इक्वल टू 100%। ये 1 और 100% कैसे एक जैसे हो गए? 1 का मतलब है कि अगर आपने ऊपर टाइम्स में निकाला तो टोटल 1 होगा, ऊपर परसेंटेज में निकाला तो 100% होगा। ये भी हम करके देख लेते हैं। सो दीज आर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन व्हाट? वेटेड इन कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप ये निकालने जा रहे हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए सबसे पहले आपको कैपिटल का स्ट्रक्चर। और आई एम अश्योरिंग यू देयर आर ओनली 4 डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन कैपिटल स्ट्रक्चर, देन यू मस्ट नो व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ देयर कैपिटल। ये हम ऑलरेडी पहले कुछ कैपिटल्स की यानी कि रिटेन अर्निंग की,
क्वेश्चन नंबर 11 में वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक and cost of common stock. In question number 11 we have calculated common and retained earning, लेकिन हम पहले क्वेश्चंस के अंदर इन सब कैलकुलेशंस को कर चुके हैं, तो अब उनको कैलकुलेट तो नहीं करेंगे बिकॉज वी आर फोकस्ड अपॉन व्हाट, हमने अब एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। मुझे साथ में ये भी लिख लेने दें कि एक्चुअली वी आर एसोसिएटेड विद WACC, तो इनकी कॉस्ट होगी और इनकी इन्वॉल्वमेंट उस स्ट्रक्चर के अंदर कितनी कितनी है, हम उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ मच डेट इज़ प्रेजेंट, हाउ मच कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड एंड रिटेन अर्निंग आर प्रेजेंट इन आर ऑर्गेनाइजेशन। सो वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको आप पढ़ते हुए आगे चलते हैं तो काम की चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, cost of capital of the rate at which company pays taxes the firm wishes to maintain a capital structure। चलें वो वर्ड ही हमें मिल गया, एक्चुअली इट्स नॉट अ कॉमन वर्ड लेकिन क्वेश्चन में मिल गया। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमने डिस्कस जैसे किया ना, देयर माइट बी 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व, डेट, कॉमन, प्रेफर्ड और रिटेन अर्निंग। द वेरी फर्स्ट थिंग विच ही इज डिस्कसिंग इज व्हाट, 30% इज डेट। ये आपको वेटेज बता रहा है, ये वेट्स हैं। 30% आपका डेट है, सो यू विल गो टू द डेट और यहाँ पर जो परसेंटेज या वेटेज है डेट के सामने आप लिख देंगे दैट इज़ 30%। अब 30% मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 100, सो यू मे राइट 0.3। इफ़ यू विल राइट 0.3 देन द सम शुड बी इक्वल टू 1। अगर आप इसकी जगह पे ये लिख देते 30% है तो आपका जो टोटल आंसर आना था वो 100% आना था। बस ये मैं आपको फ़र्क समझा रहा था कि अगर इफ़ यू विल राइट द एलिमेंट ओवर हियर इन टाइम्स द टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स प्रेजेंट ओवर हियर वुड बी 1। अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो फिर 1 आएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है देन इनका टोटल 100 आएगा। अब चूँकि आप इस बात को फॉलो अप कर चुके हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो पहले आपको पता चल गया कि डेट जो है उसकी प्रपोर्शन 30% है, आपने उसको फॉलो कर लिया। थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी मैं ठीक कर दूं ताकि हमें परेशानी ना हो। अब नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर अस। 10% प्रेफर्ड स्टॉक की बात कर रहा है। दूसरा जो कैपिटल है इन्वॉल्व वो प्रेफर्ड स्टॉक है और वो 10% है। 10% मीन 10 डिवाइडेड बाई 100, सो यू मे राइट 0.1। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपने समझी और दूसरी चीज़ आप समझिए, ये परसेंटेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये वेट्स होते हैं। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली आप समझें कि मेरे पास पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% है एंड आउट ऑफ दीज 100% आई हैव इन्वेस्टेड 30% थ्रू डेट। 30% इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज मेड थ्रू डेट, 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मेड थ्रू कॉमन स्टॉक। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ रिलेटेड टू कॉमन स्टॉक और वो आपके पास 60% है। कॉमन स्टॉक की बात हो रही है तो वो 60% है। अच्छा, ये 1 सेकेंड, सेकेंड परसेंटेज वॉज प्रेफर्ड स्टॉक। यहाँ पर 10% जो था दैट वॉज प्रेफर्ड स्टॉक। अलाइनमेंट थोड़ी सी अलग है, ये 10% रिलेटेड है प्रेफर्ड स्टॉक से और 60% जो है वो कॉमन स्टॉक की बात कर रहा है। प्लीज़ लुक एट दिस, 60% इज़ कॉमन स्टॉक। 60% मीन 60 डिवाइडेड बाई 100, सो यू मे राइट 0.6। उसका आंसर जो आ रहा है वो ये है। 3 कैपिटल हमारे हो गए। नाउ लेट्स सी इफ रिटेन अर्निंग इज प्रेजेंट और आगे वो नेक्स्ट डिफरेंट बात करना शुरू हो गया है। स्टॉक फाइनेंसिंग 9%, यानी कि उनकी जो रिटर्न्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास रिटेन अर्निंग का पोर्शन नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी ये जो परसेंटेजेस हैं इट शुड बी इक्वल टू 1। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं और फिर इसको देखेंगे कि क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। यहाँ अब ये रिक्वायर्ड नहीं है, हमारा टोटल 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सम ले लेते हैं 0.3, फिर प्लस 0.6, फिर प्लस 0.1। अब आपका सम ऑलरेडी इक्वल टू 1 आ गया। अब इससे मतलब ये निकलता है कि 100% इन्वेस्टमेंट क्लियर है, तो फिर रिटेन अर्निंग की तो अमाउंट आई नहीं, तो फिर कैसे 100% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ नो अमाउंट इन्वॉल्व विद द रिटेन अर्निंग।
टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर देर इज़ नो पार्ट विच इज़ नो पार्ट और नो रोल विच इज़ प्लेड बाय रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ पे आप एक्स भी डाल सकते हैं, ज़ीरो भी डाल सकते हैं, आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर हम ज़ीरो डाल दें तो आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि देर इज़ नो अमाउंट इन्वॉल्व इन सेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। मगर बात यह है कि यहाँ पे तो रिटेन अर्निंग डिस्कस हो रही है। द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग विद रिटेन अर्निंग यहाँ पर डिस्कशन में आ रही है कि वो 14% है, लेकिन मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, ये कॉस्ट है उसकी। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन के अंदर कॉमन स्टॉक है तो कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर कॉमन स्टॉक है तो वो उसकी जगह पे वर्ड रिटेन अर्निंग यूज़ हो सकता है। मगर चूँकि यहीं पे ही आपका 100% कंप्लीट हो गई इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब है कि रिटेन अर्निंग की इन्वेस्टमेंट तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता उसकी परसेंटेज यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आप कॉमन स्टॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोबारा बोलिए ज़रा खुद से कि इफ़ परसेंटेज ऑफ कॉमन स्टॉक इज़ गिवन दैट परसेंटेज कैन बी यूज फॉर रिटेन्ड अर्निंग, और if percentage of retained earning is available that can be used for common stock। फिलहाल आपने ये समझना है कि there is no investment through retained earning। आपके पास सिर्फ 3 तरह की कैपिटल हैं, डेट, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। अब आप देखिए कि इनकी कॉस्ट क्या निकलती है। जैसे आपने डेट का फार्मूला याद किया था, उसकी ये कॉस्ट है। कॉमन स्टॉक का फार्मूला आपने किया हुआ है, उसका एक आंसर निकलेगा, वो आंसर यहाँ लिख देना है। डेट का आंसर यहाँ लिख देना है, प्रेफर्ड स्टॉक का आंसर यहाँ पे लिख देना है, रिटेन अर्निंग का आंसर यहाँ पे लिख देना। फार्मूलाज आपने सारे याद किए हुए, उन्हीं फार्मूलाज के थ्रू आप उनके आंसर्स यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऑल द आंसर्स आर रेडिली अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग विद रिटेन अर्निंग इज़ 14%। जैसे मैंने आपको पहले कहा, रिटेन अर्निंग कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड विद कॉमन स्टॉक, वो 14% है। तो कॉमन स्टॉक के आगे आप 14%, एंड व्हाट यू कैन डू, 14 डिवाइडेड बाय 100 यू मे राइट 0.14 ओवर हेयर। कॉमन स्टॉक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। बात जो हो रही है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, और वो नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है 9%, आपको नज़र आ गई होगी। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज़ 9%। राइट डाउन 9% in front of preferred stock। 9% mean 9 divided by 100, so you may write 0.09, 9 divided by 100। और वो ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं तो ज़ुबानी कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ 9 divided by 100, तो it is 0.09। now let's see what is next for us। और नेक्स्ट है एंड बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अब आपने गौर से इस बात को समझनी है कि ये कॉस्ट ऑफ डेट तो है लेकिन बिफोर टैक्स है, एंड दैट इज़ 11%। यहीं पे एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है। 11% आपका डेट है, 11% कॉस्ट ऑफ डेट है। 11% मीन 11 डिवाइडेड बाई 100, सो यू मे राइट इंस्टेड ऑफ 11 0.11। और चूँकि रिटेन अर्निंग है नहीं तो देर इज़ नो नीड टू पुट ओवर हेयर, आप यहाँ पे ज़ीरो लगा दीजिए, इस वक्त इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, कॉस्ट, इसकी एवरेज निकालनी है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। नॉर्मली आप क्या करते थे, एक्स क्वेश्चन में गिवन होता था, आपके साथ एफ, ये दोनों चीज़ें गिवन होती थी, आप फिर एफ एक्स निकालते थे और सिंपली क्या करते थे, जो सम आया एफ एक्स का आप उसे डिवाइड कर देते थे सम जो एफ पे, तो आपकी एवरेज कैलकुलेट हो जाती थी। रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली सम ऑफ यू कैन हैव इन योर मेमोरी हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे, वो शायद आपको याद आ गया हो। अच्छा, अब इस कॉस्ट को आप समझ लें कि ये एक्स है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, और जो वेट्स हैं जस्ट कंसिडर देम एज डब्ल्यू। आपने सिर्फ इस कॉस्ट को इन वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स को मल्टीप्लाई करना है डब्ल्यू के साथ, और वो अगर आप ना भी लिखना चाहें तो आप सिंपल लिख दें कॉस्ट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इधर हम वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड वेट्स बाय 100, तो अब आपको इससे नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड आर वेट्स बाय 100, it means this is also a final verdict of frequency। ये पहले से ही
आपके वेट्स रेडी हैं, नया स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉस्ट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और उसका क्या मतलब है, सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ डेट, मगर यहाँ थोड़ी सी बात गौर से सुनने वाली है, वो मैं आपको अलहदा बताना चाहूँगा। डेट जो है वो बिफोर टैक्स है। अब इसको आफ्टर टैक्स कैसे बनाएंगे, तो आप बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर दें, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट वुड बी डेट आफ्टर टैक्स। क्लियर होगी बात, जो आपके पास बिफोर टैक्स है उसमें से टैक्स निकाल दें तो डेट आफ्टर टैक्स बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अब इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, ये आपके पास है डेट बिफोर टैक्स, यानी कि 0.11 इट इज़ बिफोर टैक्स। इसमें से आपने टैक्स माइनस करना है, और टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना आपका डेट है उसको मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट्स के साथ करेंगे। और टैक्स रेट यहाँ पर ABC पार्ट के अंदर दिए हैं। अगर वी आर गोइंग टू सॉल्व जस्ट पार्ट A, तो वी हैव 40%। 40% टैक्स है, अमाउंट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 करना था, मगर चूंकि यहाँ तो अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ परसेंटेज है, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस टैक्स का जो फार्मूला आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं, ये वही है। जिसका भी आफ्टर टैक्स अमाउंट निकालनी है उसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बल्कि एक स्टेट में मुझे और लिखने दीजिए। 0.11 आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट है, और आपने आगे लिखना है 1, और 1 में से आपने टैक्स माइनस करना है जो कि 40% है। एंड हाउ वी कैन राइट 40%, 40 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.4। ये आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, तो आपके पास डेट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 0.11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 0.4, and this way you have calculated the debt cost of debt after tax। आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कर ले बस। अगर आफ्टर टैक्स किसी का भी निकालना है, द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी कर दें। तो यहाँ पर हमने डेट का आफ्टर टैक्स निकालना था, उसकी अमाउंट तो अवेलेबल नहीं थी, उसकी कॉस्ट अवेलेबल थी, तो यू हैव put the cost and then applied the formula 1 minus t। this way you have got debt after tax। अब आपका ये जो 0.11 है ये बिफोर टैक्स है, और आपने इसको आफ्टर टैक्स बनाना है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप जो आफ्टर टैक्स अमाउंट निकाली हुई है 0.066 उसको वहाँ पुट कर देंगे। यही हमने B के लिए भी करना है, यही C के लिए करना है, तो आपके ऊपर यही बात, इसको हम रिपीट भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट आपने दोनों कॉलम्स को यानी X और W को, कॉस्ट को और वेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट वाज 0.06 मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट। फर्स्ट आंसर वी हैव गॉट, एंड सिमिलरली यू विल परफॉर्म दिस प्रोसीजर फॉर second investment is common stock, cost was 0.14, their weight was 0.6, so you have got your value। next आंसर को कैलकुलेट करना है, तो इट इज़ रिलेटेड बाय प्रेफर्ड स्टॉक, इस कॉस्ट इज़ 0.09 मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट। हेयर यू हैव वैल्यू फॉर प्रेफर्ड स्टॉक, और रिटेन अर्निंग वैसे ही ज़ीरो है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो यू कैन पुट ओवर 0। इसके बाद आपने सिर्फ इसका सम करना है, और मैं एक्सेल की हेल्प ले रहा हूँ। वैसे चलें 3 अमाउंट्स हैं, मैं डायरेक्ट ही सम करता हूँ इसको। उसमें 0.0198 है, प्लस करेंगे 0.084, प्लस करेंगे 0.09। दिस वे यू गेट द अमाउंट, एंड दिस अमाउंट इज़ शोइंग योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन यू आर यूजिंग टैक्स रेट विच इज़ 0.4। ओके। अब चूँकि आपने इसको अगर टाइम्स में लिखना है तो ऐसे भी ठीक है, या फिर अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो जस्ट टेक दिस अमाउंट मल्टीप्लाई इट विद 100, इट मीन्स 11.28। ये परसेंटेज में भी आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, क्लैरिटी हो गई। ये आपका ए पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा एज ले रहा हूँ आपसे, मैं इन चीज़ों को एज इट इज़ दोबारा उतारूँगा अपने पार्ट 2 को करने के लिए। आपको ये लिखनी पड़ेंगी ज़ाहिर है दोबारा से। मैंने अपना ऊपर वाला स्ट्रक्चर दोबारा उतारा है और नीचे लिख दिया है,
and why I have done, I am going to solve B part of this question, and for that purpose everything is similar. सिर्फ ये डेट आपको खाली नज़र आ रहा है. आपने कॉमन स्टॉक यू हैव टेकन इट फ्रॉम द क्वेश्चन, यू हैव टेकन इट्स वेट फ्रॉम द क्वेश्चन. प्रेफर्ड स्टॉक जैसे 0.09 यानी 9% था. तो अब आप क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देख लें कि ये कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आगे 9% लिखा हुआ है, सेम जैसे पीछे है, सब कुछ वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है. वी हैवंट चेंज एनीथिंग फॉर द बी पार्ट. वाई? बिकॉज द ओनली फैक्टर विच हैज़ बीन चेंज्ड इज़ योर टैक्स रेट, और वो टैक्स रेट वाज 40% एंड नाउ द टैक्स रेट इज़ 35%. सो वी विल जस्ट चेंज द अमाउंट ऑफ डेट. और मैंने कहा था आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपने डेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट के साथ. अब डेट हमारा जो स्टार्ट के अंदर था दैट वाज कॉस्ट ऑफ डेट, यहाँ पर थी कॉस्ट ऑफ डेट इज़ 11%, नज़र आ गया. डेट फाइनेंसिंग 11% थी. तो ये कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स था. आप उसको 11% मतलब 0.11 डिवाइडेड बाई 100 मीन 0.11 यहाँ पुट करें. इसके आगे आपने मल्टीप्लाई करना था, देन ब्रैकेट ओपन करनी थी, 1 लिखना था, फिर इसमें से माइनस करना था टैक्स रेट. और सेकंड पार्ट या बी पार्ट के अंदर जिस मैंने अभी डिस्कस किया, द टैक्स रेट इज़ 35%. 35% मीन 35 डिवाइडेड बाई 100 मीन 0.35. दिस वुड बी कैलकुलेटेड. ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्मेट में आपको लिख दिया. अब इसकी कैलकुलेशन कर लें. 0.11 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड व्हाट यू विल राइट 1 माइनस 0.35 ब्रैकेट क्लोज. एंड हेयर यू हैव गॉट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. Cost of debt before tax was 0.11 and tax rate has been changed, which is now 35%. You have applied the formula and then you have got cost of debt after tax, and you are supposed to write over here the same amount which you have just calculated, and that is 0.0715. नहीं जी, आपका डेट कंप्लीट हो गया. अब आपको इसकी एवरेज निकालनी है, और एवरेज निकालने के लिए व्हाट वी हैड डिसाइडेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सिर्फ वेट्स करने हैं जो अभी आप कर चुके थे. सबसे पहले यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर कॉस्ट ऑफ डेट वेयर कॉस्ट वाट 0.0715 एंड यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 0.3 यानी 30%. इट वॉज वेट. here you have got the value for the debt. Now you are going to calculate value for your common stock. Cost of common stock is 14% means 0.14 and its weight is 0.6 means 60%. Multiply करें, इसकी value निकालें. So we have got the value of common stock. Now you are going to calculate value for your preferred stock. Cost of preferred stock 0.09. You will multiply it with 10%, that's weight of preferred stock. This way you have calculated value for the preferred stock as well. और चूँकि इस क्वेश्चन में प्रेफर्ड, इस क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग नहीं है, उसकी जगह ज़ीरो लगा दिया अब. और नेक्स्ट स्टेप आपने इन सब को सम करना है. दैट वुड बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब सम करने के लिए सबसे पहले 0.02, फिर प्लस करना है 0.084, फिर प्लस करना है 0.09. In this way you have got your second calculation and that is 11.445. और जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, if you want to write it in your percentage way, so what you will do, you will take answer multiply by 100 and this way your percentage has been calculated. अब ये क्या चीज़ आपने कैलकुलेट की है? दिस इज़ अगेन योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आप उसको वैक बोलते हैं. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कैलकुलेट की है यानी वैक. और आपके पास वैक का जो बी पार्ट है उसका आंसर आपके पास आया 11.45. ऑलराइट जी, ये हमने बी पार्ट यहाँ कंप्लीट कर लिया. अब लेट्स सी व्हाट सी पार्ट इज सेइंग. बी पार्ट ऐसे कंप्लीट, इस तरह से आपने ए पार्ट का भी आंसर निकाला. और आंसर लिखने का जो ये मेथड है
इज़ क्वाइट बेटर। तो हम क्या करते हैं, इसी आंसर को यहाँ पर भी पुट कर देते हैं लाइन करके। अब सी पार्ट के अंदर भी आपको मेन मैटर तो सारा कुछ पहले से डिस्कस हो गया हुआ है, और आपने सिर्फ वेट जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसी को ही चेंज करना है। उसको आप तीसरी मरतबा प्रैक्टिस करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट कैसे चेंज करना है। फॉर द टाइम बीइंग मैं अपनी सारी अमाउंट्स को जो ए और बी के लिए कैलकुलेट की हैं मैं उधार ये जगह ले रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू राइट ऑल दीज अमाउंट्स इन द सिमिलर मैनर। और मुझे चूँकि एक्सेल में थोड़ी सी आसानी है, बट यू हैव टू राइट एवरीथिंग अगेन इसके आंसर्स निकालने के लिए। यहाँ अब जो आपके पास खाली वेकेंट मैटर है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द डेट, और आपने यहाँ पर डेट के लिए दोबारा से कैलकुलेशन करनी है आफ्टर टैक्स के लिए। और वो कैसे होगा, आपके पास एक डेट है जो बिफोर टैक्स है, एंड टू कैलकुलेट आफ्टर टैक्स यू विल सब्सट्रैक्ट टैक्स फ्रॉम इट, with which you will get debt या cost of debt after tax. For that we have a very simple formula. What you will do, amount of debt, and you will multiply it with 1 minus t। अच्छा, मैं चाहता तो यही हूँ कि मैं आपको बताऊँ ये 1 माइनस क्यों हुआ, ये t आगे क्यों आया, हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास टाइम हुआ तो वी विल डिस्कस इट इन द लेटर ऑन। तब मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल देता हूँ। जब आंसर निकल आएगा उसके बाद मैं ये दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा, वो चाहे आप देखें या ना देखें, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। आपने यहाँ पर बस फार्मूला याद कर लेना है। कॉस्ट ऑफ डेट हमने जैसे क्वेश्चन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज़ 11%. Look at this, before tax cost of debt is 11%. So for third time we are doing the same thing. 11% mean 11 divided by 100 means 0.11, and then you are supposed to multiply it with 1 and then subtract minus, और tax rate जो C part का है we'll have to see C's tax part is 25%. So C option is having tax rate 25%, means 25 divided by 100 means 0.25, then you will close the bracket। और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी, एंड नाउ यू विल पुट इट ऑन कैलकुलेटर, और उसके लिए आप क्या करेंगे 0.11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 1 minus 0.25 bracket closed, and here you have calculated cost of debt after tax. This is cost of debt after tax। और ये जो एक खाना खाली था डेट पर, हम इस जगह पर अपनी उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जो है 0.0825। ओके, इस तरह से कॉस्ट ऑफ डेट आपकी कंप्लीट हो गई। और ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये सारा पिछला ही जो ए में यूज़ हो रहा है, बी में यूज़ हो रहा है, ये सब वही है। मतलब 30% इज़ डेट, 60% इज़ कॉमन स्टॉक, 10% इज़ प्रेफर्ड स्टॉक, एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, लुक एट दिस, 30% वॉज डेट, 10% वॉज प्रेफर्ड स्टॉक, and 60% was common stock। 30 10 and 60, and same we have taken 30 10 and 60 respectively। अब आपको इसकी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करने के लिए पुराना मिटा देते हैं यहाँ से, बट वी हैव गॉट, आपने वेट्स को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना। सो कॉस्ट ऑफ डेट वाज 0.08 मल्टीप्लाई विद इट्स वेट, वेट वाज 0.3। Here you have got the value for your debt, and now you are needed to calculate value for common stock. Cost was 0.14 multiplied by weight was 0.6. Here you have got the value for common stock. Now you are needed to calculate value for preferred stock. Cost was 0.09, it would be multiplied by its weight which was 10%, और preferred stock तो retained earning तो 0 है, so you can put 0 over here। अब आप सिंपली इसको सम कर लें इस कॉलम को, 0.02 प्लस 0.084 प्लस 0.09, दिस वे यू हैव गॉट टोटल 0.11175। और if you want to present it in percentage you will get this answer, multiply it with 100
Here you will get its percentage 11.775. So this way you have calculated weighted average cost of capital if tax rate is going to be changed. आपने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं. ये पहला weighted average cost of capital आपने कैलकुलेट किया. फिर आपके पास ये सेकंड weighted average cost of capital आया, और इसी तरह से आपने तीसरा weighted average cost of capital निकाला. होपफुली यू आर फॉलोइंग द वे विच इज़ नीडेड. तीनों कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले, इनके आंसर्स आप बुक से मैच कर लीजिएगा. इस तरह से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. अच्छा, अब वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 9.12. लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा. अब मैं थोड़ी सी बात आपसे सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, सिंस आई एन्जॉय माई सेल्फ वेन एवर इट इज़ समथिंग विच हैज़ एनी कनेक्शन विद द कॉन्सेप्ट, तो मुझे अच्छा लगता है उसको एक्सप्लेन करना. आप बेशक यहाँ पे वीडियो रोक दीजिए, अपना काम कंप्लीट कर लें और क्वेश्चन कंप्लीट कर लें. मुझे सिर्फ ये डिस्कस करना है व्हाट इज़ दिस 1 - t, और वो ये फार्मूला मैं क्यों लिख रहा हूँ समझाने के लिए लिख रहा था. मैं इसी चीज़ को जो आप पहले से बता रहा हूँ उसको मैं डेमॉन्स्ट्रेट करके बताना चाहता हूँ. ये 1 - t क्या है. सो डेट बिफोर टैक्स यू हैव समथिंग जो कॉस्ट है, एंड इफ़ यू विल सब्सट्रैक्ट टैक्स अपॉन इट यू विल गेट कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. ओके, अब ये एक स्टेटमेंट है आपके सामने लिखी हुई, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स. वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था जो हमने कई दफ़ा डिस्कस किया. कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज़ 11%. तो समझिए वो 11 है, यानी 11 डिवाइडेड बाई 100 0.11. अब इसमें से आपने टैक्स इसका लेस करना था. टैक्स कैसे कैलकुलेट करें. ये जो कॉस्ट है ये बिफोर टैक्स थी, 11% बिफोर टैक्स. तो इस पर आपको टैक्स लगाना था, और वो कैसे लगाएंगे. टैक्स का रेट था पहला 45%. जो 40% पहला टैक्स का रेट था वो एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बाकी ज़रूरी नहीं है. सो 0.11 इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट, और you are needed to calculate its 40%. 40 divided by 100 means 0.4. ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. अब इसको आप कैलकुलेटर पे रखें. सबसे पहले 0.11 है, उसमें से आपने माइनस करना है, ब्रैकेट ओपन करनी. 0.11 मल्टीप्लाई बाय 0.4, और अब आपके पास 0.66 आया. ये फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन थी. तो फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन में आप यहाँ चेक करें, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स है 0.066, और जो आपने इस वे में कैलकुलेट किया 0.066. बस सिर्फ इस जस्ट रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट. फार्मूला अपनी जगह ओके है. 1 - t आप याद कर लीजिए, ब्रैकेट खोलिए और लगा दें. लेकिन ये आया कैसे है. आपने कॉस्ट ऑफ डेट ली जो कि 0.11 था, और उस पर टैक्स लगाया. इस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ, और देन यू हैव सब्सट्रैक्टेड दैट टैक्स फ्रॉम द कॉस्ट विद विच यू विल गेट व्हाट, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स. तो चाहे आप ऐसे समझ लीजिए और बस फार्मूला याद कर लीजिए दूसरे तरीके के मुताबिक. तो फॉलो द फार्मूला. ओके जी, होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड. अब यहाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 9.12. अगर इफ़ यू हैव इतना टाइम के बाद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज, टेक्स्ट और कमेंट, or we will surely be meeting for the solution of any other question in future inshallah. Up till then, please take care of yourself. I am requesting you to please pray for me as well. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.